Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important problems on general solution of trigonometric equation. So the MCQs which we are solving in this lecture are very important for MST CET. In the last lecture हमने इसके फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसका जनरल सॉल्यूशन. So in that formula we have seen the formulas for general solution of trigonometric equation: sin theta equal to 0, cos theta equal to 0, tan theta equal to 0, sin theta equal to 1, sin theta equal to minus 1, cos theta equal to 1, cos theta equal to minus 1, cot theta equal to 0, sin theta equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha, tan theta equal to tan alpha, and the last group was sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, and tan square theta equal to tan square alpha. So using those formulas of general solution of trigonometric equation, now we will solve the important MCQs for MST CET. So before starting our questions, students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So students, here is my question number 1, and in this question I have to find the general solution of the equation sin of 2 theta equal to 1 by 2. So here my first question, and in this question I have to find the general solution of the equation sin of 2 theta equal to 1 by 2. Given trigonometric equation is sin 2 theta equal to 1 by 2. So this value 1 by 2 of sin can be written as sin of pi by 6. Sin of pi by 6 is 1 by 2, sin 31 by 2. Now the given equation is in the form of sin theta equal to sin alpha. तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करने का है टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड द फार्मूला इज if sin theta equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So using this formula I will have this 2 theta is equal to sin theta equal to sin alpha, then this theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, where alpha is pi by 6. So here theta is dividing by 2, I will get n pi by 2 plus minus 1 to the power n into pi by 12. So this is the value of theta. This is the general solution of the equation, and this is in the option A. So therefore option A is correct for this question number 1 of the general solution of the trigonometric equation. So students, similarly we will solve the other problems. See the question number 2. See the question number 2, and in this question I have to find the general solution of trigonometric equation. Second is I have to find the general solution of the trigonometric equation tan of 2 theta by 3 is equal to root 3. General solution of the equation tan of 2 theta by 3 is equal to root 3. So I will express this root 3 in terms of tan. So tan of 2 theta by 3 is equal to root 3 is the value of tan of 60 degree, and tan of 60 degree is tan of pi by 3. Now this equation is in the form of tan theta equal to tan alpha. This equation is in the form of tan theta equal to tan alpha, and the general solution of tan theta equal to tan alpha is theta equal to n pi plus alpha. If tan theta equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. So here theta means 2 theta by 3 is equal to n pi, and alpha is pi by 3. I will multiply both side by 3, so it will be 2 theta equal to 3n pi plus pi, and now dividing by 2, this theta will be equal to 3n pi by 2 plus pi by 2. So this is the general solution of this trigonometric equation, and this is the answer in the option B.
So this was the question number 2 of trigonometric solution, general solution of trigonometric equations. So students, like this we have to use the formulas for general solution of the trigonometric equation. हमें पूरे फॉर्मूले उसके याद रखने के हैं, तभी हम उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. So formulas are very important in this lecture or to find the general solution of trigonometric equation. Now see, third question is again we have to find the general solution of in third I have to find the general solution of the equation cot of 4 theta equal to -1. Find the general solution of the equation cot of 4 theta equal to -1. So this cot of 4 theta can be written as, taking reciprocal, tan of 4 theta is also equal to -1. So taking reciprocal of cot, it is tan, and reciprocal of -1 is -1. Now I will express this -1 in terms of tan. -1 को भी मैं tan में एक्सप्रेस करूँगा ताकि मुझे फार्मूला अप्लाई करता आना चाहिए. Which formula will be used to find the general solution of this equation? Therefore this is minus tan of pi by 4. Value of tan is negative. -1 can be written as minus tan of pi by 4. वैसे तो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना चाहिए tan of 3 pi by 4 is -1. tan of 3 pi by 4 is -1. So it is एक स्टेप्स में आपको एक्स्ट्रा लिख के बता रहा हूँ. So minus tan of pi by 4, so it is tan of pi minus pi by 4. Tan of pi minus theta is minus tan theta. So therefore it is tan of 4 theta is equal to tan of 3 pi by 4. So you can skip this step. You can directly write tan of 4 theta equal to -1. So this -1 can be written as directly tan of 3 pi by 4 अगर आपको वैल्यूज याद है तो. Again this equation is in the form of tan theta equal to tan alpha, and the general solution of tan theta equal to tan alpha is theta equal to n pi plus alpha. So here my theta is 4 theta and alpha is 3 pi by 4. See the formula, tan theta equal to tan alpha is general solution theta equal to n pi plus alpha. So this 4 theta will be equal to n pi plus alpha is 3 pi by 4, and therefore theta is equal to n pi by 4 plus 3 pi by dividing by 4, n pi by 4 plus 3 pi by 16, and this is the answer to this question number 3, and this is the answer in the option D. So option D is correct for this question number 3 of the general solution of trigonometric equation. So students, now we will solve the question number 4. See on the board question number 4 of the general solution of trigonometric equation, and in the question it is given that if sin square theta equal to 1 by 4, if sin square theta is equal to 1 by 4. स्टार्टिंग में हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे आगे हम जाएंगे वैसे वैसे हम हार्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की लेवल भी बढ़ाएंगे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो हियर इन द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड दैट if sin square theta is 1 by 4, then general value of theta is, it means we have to find the general solution of this trigonometric equation. अब हमें देखने का है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में आता है. जितने हमने फार्मूले देखे हैं उन फार्मूले में से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. साइन स्क्वायर थीटा इज, दिस इज 1 by 2 square, and this sin square theta is sin square of pi by 6. 1 by 2 is sin of pi by 6, sin 31 by 2, so 1 by 4 can be directly written as sin square of pi by 6. अब देखिए इक्वेशन कौन से फॉर्म में है. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ sin square theta equal to sin square alpha, and the general solution of sin square theta equal to sin square alpha is theta equal to n pi plus minus alpha.
तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तीनों के जनरल सॉल्यूशन सेम है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हैज सेम जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n pi plus minus alpha. So this theta is equal to, this is theta, this is alpha, theta equal to n pi plus minus alpha, so alpha is pi by 6 and this is the answer to this question number 4. And this question number 4 has general solution n pi plus minus pi by 6, which is in the option C. So this was the question number 4. Now we will see the next question number 5 of trigonometric function, that is the general solution of trigonometric function. Okay, so in the question number 5 it is given that if tan of 3x equal to cot x, tan of 3x equal to cot x है तो x की वैल्यू क्या होगी, जनरल वैल्यू क्या होगी. So tan of 3x equal to cot x, this is the given general equation. See the question, tan of 3x equal to cot x, I have to find the general solution of this trigonometric equation. Now इसकी लेफ्ट हैंड साइड tan में है और राइट हैंड साइड cot है, तो हम राइट हैंड साइड को भी tan में एक्सप्रेस करेंगे ताकि मुझे इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में मिल जाए. ओके, सो हियर tan of 3x as it is and this cot x can be written as tan of pi by 2 minus x. सबको पता है tan of pi by 2 minus theta is cot theta. So students, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का MST CET या JEE के लिए अच्छी तरह से तैयार करने का हो तो उसका बेस है ट्रिग्नोमेट्री. विदाउट द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंसेस. All these are depends on the formulas of trigonometry. So trigonometry is the base for this topic. So here cot theta is tan of pi by 2 minus theta. अब देखिए इक्वेशन कौन से फॉर्म में आए. This equation is in the form of tan theta equal to tan alpha. Tan of theta is equal to tan of alpha. अब इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of general solution of tan theta equal to tan alpha? So if tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus alpha. tan theta equal to tan alpha है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है theta equal to n pi plus alpha. So here theta means 3x, here theta means this 3x equal to n pi plus alpha is pi by 2 minus x. So 3x minus x इधर ट्रांसफर होगा 4x equal to n pi plus pi by 2. So this n pi plus pi by 2 can be written as n plus 1 by 2 pi. So it is x equal to n plus, तो इसे मैं लिखता हूँ 2n plus 1. 4x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. And therefore the value of x is 2n plus 1 pi by dividing by 4, it will be pi by 8. So this is the answer to this question, x equal to 2n plus 1 pi by 8. This is the answer to this question and this answer is in the option A. So this was the question number 5. Now we will solve the next question number 6 of this lecture of general solution of trigonometric equation. So see the question number 6. Question number 6 देखिए, and in this question it is given that most general value of theta satisfying these two equations. Most general value of theta satisfying these two equations, and the given equations are sin theta equal to sin alpha, sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. So most general value of theta satisfying these two equation, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की वैल्यू जनरल फॉर्म में हमें बताने की है. सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ शॉर्टकट. ये एक शॉर्टकट ही है क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हम इसी क्वेश्चन के आंसर से डायरेक्ट लिखेंगे. सो हियर
what is the general solution of sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. So if we solve this equation like this, I can write this equation as sin theta minus sin alpha equal to 0, and this can be written as cos theta minus cos alpha equal to 0. So using sin c minus sin d, sin c minus sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टराइजेशन का. So that is 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 is equal to 0, and this is cos c minus cos d equal to 0, cos theta minus cos alpha equal to 0. cos c minus cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे. So it is minus 2 sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 equal to 0. So this sin theta इक्वल टू साइन अल्फ़ा कब होगा? sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कब होगा? जब 2 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा कब होगा? जब माइनस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा. तो इन दोनों इक्वेशन में कॉमन टर्म क्या है? sin of theta minus alpha by 2. So this is satisfied if this is 0 and this is satisfied if this is 0. क्योंकि इसे हम लग सकते हैं either this is 0 और this is 0. इसे हम लग सकते हैं either this is 0 और this is 0. लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? So common factor is sin of theta minus alpha by 2 equal to 0. And the general solution of sin theta equal to 0 is theta equal to n pi. General solution of sin theta equal to 0 is theta equal to n pi. फिर से देखिए sin theta equal to sin alpha यानी sin theta माइनस sin alpha के ये दो फैक्टर्स हैं, cos theta माइनस cos alpha के ये दो फैक्टर्स हैं. इन दो ये फैक्टर में से ये फैक्टर कॉमन है. सो दिस इज़ द कॉमन सोल्यूशन. यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन मिलेगा. सो हियर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा मीन्स थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई होगा, और थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई होगा, और थीटा क्या होगा? 2n पाई प्लस अल्फ़ा. दिस इज़ द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying both these equations, sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. So students, sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha has general solution theta equal to 2n pi plus alpha. अब ये sin और cos है, sin और tan होता तो sin theta equal to sin alpha and tan theta equal to tan alpha, तब भी जनरल सोल्यूशन लिखने का है थीटा इक्वल टू 2n pi plus alpha. अगर cos और tan होता तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो उसका भी जनरल सोल्यूशन यही लिखने का है 2n पाई प्लस अल्फ़ा. इफ़ यू आर राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ जनरल सोल्यूशन, तो इस पॉइंट को आप प्लीज़ नोट कीजिए. जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एंड कॉस इस फॉर्म में cos एंड tan, और sin और tan का यही होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा. सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, एंड दिस इज़ द इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए. नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग द सेम फार्मूला, इन इसी शॉर्टकट को हम यूज़ करेंगे. साइन कॉस हो, कॉस tan हो, या साइन tan हो, उनका जनरल सॉल्यूशन यही होता है. अब इसका एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वही रिपीट है, मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस. मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस, एंड द इक्वेशन इज फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड द सेकंड इक्वेशन इज tan थीटा इक्वल टू 1/√3. आप देख रहे हैं क्वेश्चन में इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली जनरल वैल्यू पूछी है थीटा, मोस्ट जनरल वैल्यू, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बोलने का है. अब दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो साइन इज़ निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन इज़ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाते समय
क्वाड्रेंट कौन सा चॉइस करने का है? साइन इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाते समय जो क्वाड्रेंट फर्स्ट लगेगा वही क्वाड्रेंट हमें लेने का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कंसिडर करने का है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू क्या मिलेगी? पाई प्लस पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन ये होगा। सो इट इज़ साइन ऑफ 7 पाई बाई 6। ओके, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? tan इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन ये सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट का है तो यहाँ पे भी हमें थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लेने का है। सो tan थीटा इक्वल टू tan इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखा है हमने थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन। यानी हमें ऐसा क्वाड्रेंट चॉइस करने का है जहाँ पे साइन नेगेटिव हो और tan पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है? वी हैव टू सेलेक्ट द क्वाड्रेंट इन विच साइन इज नेगेटिव एंड tan इज पॉजिटिव, एंड दैट क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट। उस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी पाई प्लस पाई बाई 6, यहाँ पे भी लिख सकते 7 पाई बाई 6। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्यूशन क्या लिखा है? 2n पाई प्लस अल्फ़ा। सो इट इज़ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी क्या लिखने का है? एंगल 7 पाई बाई 6। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू दिस equation satisfying both the equation. This is the general value of theta. Theta equal to 2n pi plus 7 pi by 6. Last option is correct. I think this is in the last option D. So this is the solution of this trigonometric equation 7. Now we will further solve the equation number 8 of the general solution of trigonometric equations. See the question number 8. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। सो हियर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें इक्वेशन दिया है tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1। ओके, so here given equation is tan theta into tan of 2 theta equal to 1. So this tan theta as it is tan of 2 theta डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ tan of 2 theta? So tan of 2 theta क्या होता है? फार्मूला tan of 2 theta का फार्मूला क्या है? 2 tan theta अपॉन 1 माइनस tan square theta equal to 1 as it is. Now this 2 tan into tan square theta is equal to 1 into this term 1 minus tan square theta 1 into this as it is. So 2 tan square theta plus tan square theta ये बनेगा 3 tan square theta equal to 1. अब प्रॉब्लम इजी है। So here tan square theta will be equal to 1/3 and this tan of theta is equal to tan of square theta is equal to 1/3 is 1/√3 square. 1/√3 is the value of tan of pi by 6, tan 31/√3. सो अब इक्वेशन कौन से फॉर्म में? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। फिर से फार्मूला यूज़ करने का है। इफ़ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। सो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, tan इक्वल टू tan है तो ओनली प्लस है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। लेकिन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लेने का है। सो हियर सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? पाई बाई 6। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, n पाई प्लस माइनस pi by 6. This is the question number 8 and this is in the option D. So this was the question number 8. Now see the question number 2, general solution of the equation. Question number 9. Next question देखिए,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2। ओके, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कॉट को 1/10 लिखिए, एक्सप्रेस कॉट इन टर्म्स ऑफ tan और tan इन टर्म्स ऑफ कॉट। फिर आपको tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करके भी जनरल इक्वेशन लिख सकते हो। बट अगर हम ऐसा सॉल्व करते हैं तो हमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिखाई देता है। आप करके देखिए, एक्सप्रेस दिस कॉट एज 1/10, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम कम है, तो मैंने दूसरी मेथड से इसका आंसर पहले सॉल्व करके देखा है, और वो आंसर आपको ऑप्शन में कैसे मिलता है वो हमें दिखाऊँ। मैं इसे tan में कन्वर्ट नहीं करूँगा, इसे कॉट में कन्वर्ट नहीं करूँगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसका आंसर आता है। सो वी नो वेरी वेल कॉट इज कॉस बाय साइन, कॉट इज कॉस बाय साइन एंड tan इज साइन बाय कॉस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस इंटू tan, साइन इंटू कॉस इंटू 2, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूले आने चाहिए। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा इज 4 formulas. Cos square theta minus sin square theta first. Second is 1 minus 2 sin square theta. Third is 2 cos square theta minus 1. Fourth one is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So this is cos of 2 theta. ये सबको पता है। दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा। सो दिस इज साइन बाय कॉस, tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1, और इस 1 को हमें tan के फॉर्म में लिखने का है, तो दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4। सो अब इक्वेशन किस फॉर्म में मिला है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? पाई बाय 4, और इस तरह से मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी डिवाइडिंग बाय 2 n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 9, n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन। ओके, so this was the question number 9. See the question number 10. आप इसे 10 में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन में नहीं दिया है। So see the next question students. Question number 10 of general solution of trigonometric equation. Question number 10. यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया है? if 1 plus cot theta is equal to cosec theta, 1 plus cot theta equal to cosec theta, 1 plus cot theta is equal to cosec theta. So we have to find the general value of theta. Then general value of theta is theta के general value क्या होगी? ओके, तो इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। साइन से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको कंफर्म करनी चाहिए कि हियर साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इफ साइन थीटा इज 0, दिस टर्म विल नॉट डिफाइन। तो इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0 के सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होगा। सो साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो इसे साइन या कॉस की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। सो एट दैट
at the time of solving this type of trigonometric equation, we have to divide by root of a square plus b square. So here a is 1, b is 1, root of a square plus b square, root of 1 plus 1, so that will be root of 2. तो हमें इस इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड करने का है. We will divide this equation by root 2. So रूट 2 से डिवाइड करेंगे cos थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 1 बाय रूट 2. अब देखिए दिस इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b. लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में मिली है? cos a cos b प्लस साइन a साइन b. दिस इज cos ऑफ पाई बाय 4, दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 4. सो दिस इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b. किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ a माइनस b. cos of a minus b. This is cos of pi by 4, this is sin of pi by 4. So here b is pi by 4 and this is cos of pi by 4. अब इक्वेशन किस फॉर्म में है? cos theta equal to cos alpha. See the general solution of cos theta equal to cos alpha. Theta equal to 2n pi plus minus alpha. If cos theta equal to cos alpha, then theta is given by 2n pi plus minus alpha. So here theta क्या है? थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. अब इस थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. ये माइनस पाई बाय 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे प्लस पाई बाय 4 और यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा थीटा इज इक्वल टू, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा. सो वन सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2. अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा. सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 2n पाई. ओके, लेकिन 2n पाई सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे n 0 लिए तो 0 होगा और यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोसेक 0 विल नॉट डिफाइन. तो इस सॉल्यूशन को हमें कैंसल करना पड़ेगा. दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड. सो द ओनली सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. 2n पाई को हमने कैंसिल किया है. दिस विल इस सॉल्यूशन से गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. So this is in the option C. So this was the question number 10. Now we will solve the next question number 11. Next question देखिए, question number 11 of the general solution of trigonometric equation. इसके लिए आपको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आने चाहिए. एडिशनल में आपको सभी जनरल सॉल्यूशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. सो हियर इज़ द इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 11. साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस रूट 3 इंटू टैन थीटा इक्वल टू 0. जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा है. ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा. सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा. दिस इज रूट 3 टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 0. सो अगेन हियर कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, सो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0. टेकिंग साइन थीटा कॉमन I will get sin theta plus root 3 equal to 0. So either sin theta equal to 0 and sin theta equal to minus root 3. This is not possible. This value of sin is not in the -1 to 1. तो यहीं से आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा. और साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई. थीटा इक्वल टू n पाई सॉल्यूशन मिलेगा. ये हमें कैंसल करना पड़ेगा क्योंकि दिस वैल्यू ऑफ साइन इज़ नॉट इन बिटवीन -1 to 1. So theta equal to n pi is the correct answer to this question, and this answer is in the option B. Now see next question number 12.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में cot थीटा प्लस cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 2। इफ cot थीटा प्लस cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है, तो हमें इसे tan में कन्वर्ट करेंगे। cot थीटा इज 1/tan थीटा। नाउ दिस इज cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो हमें tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला मालूम है। व्हाट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा? tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। सो दिस इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा मिलेगा आपको 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो cot हमें लिखने का है cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना पड़ेगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। सो दिस इज द cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। कैसे लिखा है मैंने यहाँ से आपको समझाया। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा बनेगा 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस tan इंटू tan बनेगा tan स्क्वायर थीटा। 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बनेगा 2 tan थीटा, और 2 इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज 1 प्लस 2 tan थीटा, tan प्लस tan माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस प्लस 2 tan थीटा, दिस प्लस 2 tan थीटा विल गेट कैंसल। 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/3, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर। सो 1/√3 इज tan ऑफ पाई बाय 6, सो इट इज tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6। अब देखें इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा? इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीन इक्वेशन, तीनों के स्क्वायर के इक्वेशन तीनों भी सेम जनरल सॉल्यूशन है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है मेरा? पाई बाय 6। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। cot थीटा प्लस cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 2 का यह जनरल सॉल्यूशन है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन डी। So students, this is the question number 12. Now we will solve the next question number 13. Next question number 13 of this general solution of trigonometric equation. तो question number 13 देखिए, question number 13, और यहाँ पे मेरा इक्वेशन है sec of 4 थीटा माइनस sec of 2 थीटा इक्वल टू 2। sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2। तो इसके हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है। इफ sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2, देन जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो इसे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस। सो बाय कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस, इक्वेशन हमें मिलेगा 1/cos ऑफ 4 थीटा माइनस 1/cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 2 इंटू दिस। सो इट विल बी 2 cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ व्हाट? 4 थीटा। सो दिस cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos ऑफ 4 थीटा एज इट इज। डी फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, डी फैक्टराइजेशन थर्ड फार्मूला। सो 2 cos a इंटू cos b क्या होगा? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। cos ऑफ a प्लस बी कितना होगा? 6 थीटा प्लस cos ऑफ a माइनस बी 2 थीटा माइनस 4 थीटा इज माइनस 2 थीटा, बट cos ऑफ माइनस 2 थीटा इज cos ऑफ 2 थीटा, सो इट इज cos ऑफ 2 थीटा
सो यहाँ से या फिर हमें यहाँ पे भी cos c माइनस cos d यूज़ करके भी ठीक है, नहीं तो ये साइन में आता था। दिस इज ओके, दिस cos गेट कैंसिल, इस cos को हम कैंसिल कर सकते हैं। टर्म विच इज इन प्रोडक्ट हैविंग अननोन एंगल कैंसिल नहीं करने की, ये टर्म प्रोडक्ट में नहीं है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब मेरा इक्वेशन बन गया है cos ऑफ 6 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 0, cos c प्लस cos d फैक्टराइजेशन, cos c प्लस cos d इक्वल टू 0, 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 equal to 0. So 2 cos of factorization c plus d by 2 10 by 2 कितना होगा 5 थीटा into cos of c minus d by 2 2 थीटा by 2 कितना होगा थीटा equal to 0. So either cos of 5 थीटा equal to 0 और cos थीटा equal to 0. So यहाँ से मेरे फैक्टर्स मिलेंगे cos of 5 थीटा equal to 0 और cos of थीटा equal to 0. So cos ऑफ 5 थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। तो यहाँ से मुझे 5 थीटा मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। फिर से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। So theta is equal to 2n plus 1 into pi by 10. So 2n plus 1 pi by 2 and 2n plus 1 pi by 10. ओके, तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं पाई बाय 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो इट विल बी n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 एंड दिस इज पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कीजिए n पाई प्लस पाई बाय 2। तो इस फॉर्म में हमें आंसर दिया है। सो दिस इज इन द ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13 और उसका आंसर है सी। इसको आपको फिर से सिंप्लीफाई करने का है, ये आपको ऑप्शन देख के समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज होने का नहीं। हम सॉल्व तो बराबर करते हैं लेकिन ऑप्शंस अगर किसी अलग फॉर्म में देते हो तो हमें वहाँ पे दिमाग लगाने का है और उसे फिर से सॉल्व करके देखने का है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो इक्वेशन देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का इक्वेशन, जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है। सो इन द क्वेश्चन नंबर 14 माय गिवन इक्वेशन इज क्या है, tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा। आप देखिए क्वेश्चन, प्लस √3 इंटू tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू √3। तो इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है। इफ दिस देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखिए इसे हम कैसा सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वेशन को लिखता हूँ मैं tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा, ये √3 है राइट साइड में, इस टर्म को शिफ्ट करूँगा और √3 कॉमन ले लूँगा। √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। तो इन दोनों टर्म से √3 कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। ओके, अब देखिए दिस इज tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा अपॉन दिस 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू √3। यस, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b is the formula of tan of a plus b. This is tan of a plus b. A tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. This is a, this is b. Tan of a plus b, theta plus 2 theta क्या होगा 3 theta. Tan of a plus b is equal to tan of 60 degrees pi by 3. Okay, so tan theta equal to tan alpha. Tan theta equal to tan alpha. So what is the general solution of the equation tan theta equal to tan alpha? Tan theta equal to tan alpha का general solution क्या है?
सी द फार्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन थीटा यानी 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा कितना है π/3। अब 3 से डिवाइड कीजिए तो हमें मिलेगा n π/3 प्लस π/9 and this is the general solution of this given trigonometric equation n π/3 प्लस π/9। ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा n प्लस π/3। ओके सो थीटा बनेगा 3n 1/3 3n प्लस 1/3 इंटू 3 कितना होगा π/9। 3n प्लस 1 इंटू π/9 राइट, दिस इज इन द ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन इसे ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने का है। π/3 कॉमन n बचेगा, पाई कॉमन 1/3 3n प्लस 1 अपॉन 3 3 इंटू 3 कितना होगा 9। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14, ये उसका आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर MST/CET। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलेज भी आपको आनी चाहिए। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ का इक्वेशन है sin 3 अल्फ़ा। सी द क्वेश्चन नंबर 15, sin 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 sin अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है, x की वैल्यू पूछी। साइन ऑफ 3 अल्फ़ा इक्वल टू 4 साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा। इसे हम फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी क्या फार्मूला है? डायरेक्ट फार्मूला है इसका, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें इसका साइन का रिजल्ट यूज़ करेंगे क्योंकि साइन 3 थीटा इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ साइन। तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा को ये फार्मूला हमें यूज़ करने का है साइन का। तो मेरा स्टेप्स ऐसा बनेगा, साइन ऑफ 3 अल्फ़ा इक्वल टू 4 साइन अल्फ़ा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी यानी अल्फ़ा। ओके, फार्मूला आपको समझ में आया होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और साइन ऑफ 3 थीटा का फार्मूला भी यूज़ करता हूँ। ट्रिपल एंगल साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा क्या है? अल्फ़ा। ओके, नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 साइन अल्फ़ा टू दिस ब्रैकेट, सो इट इज़ 4 साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ओके, नाउ दिस माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसमें अननोन एंगल नहीं भी है और ये टर्म प्रोडक्ट में भी नहीं है। प्रोडक्ट की टर्म कैंसिल नहीं करने की है, दिस टर्म इज़ नॉट इन द प्रोडक्ट, वी कैन कैंसिल दिस। नाउ आई हैव दिस 3 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4 साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अगेन साइन अल्फ़ा गेट कैंसिल। अब मेरा इक्वेशन बन गया है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, 3/4 इज रूट 3/2 स्क्वायर। अब मेरा इक्वेशन इस तरह से दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 60, साइन 60 इज रूट 3/2, so इट इज साइन स्क्वायर ऑफ π/3। तो इक्वेशन है मेरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सीधा फार्मूला अगेन,
if sin square theta equal to sin square alpha, general value of theta is theta equal to n pi plus minus alpha. So theta means x equal to n pi plus minus alpha कितना है pi by 3. So this is the answer to this question number 15, x equal to n pi plus minus pi by 3, and this is in the option B. So students, these were the 15 important MCQs of जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. लास्ट लेक्चर में हमने इसके फार्मूलेज देखे थे. अगर आपको उस फार्मूले की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए. और बाकी सारे टॉपिक्स के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टॉप हियर. And this was the first lecture of general solution of the trigonometric equation. 15 problems solve किए. Next problem में 16 to 30 again 15 problems important MCQs हम solve करेंगे of the general solution of the trigonometric equation. So students, okay, मिलते हैं next lecture में. Bye.